हम लोग अप्रैल में यूके गए थे और मई में यूएस गए थे, मैं और मेरी वाइफ, अच्छा बच्चों को मिलने के लिए। अच्छा और 2 ग्रैंड चिल्ड्रन है, दोनों गर्ल्स, बोटा बोटा गर्ल्स, वेरी क्यूट गर्ल्स। क्या बात। अभी आएंगे वो अंकल अमरपति या फिर नहीं, फेब्रुआरी में आने। okay. Parizad is our daughter, so Parizad's family will come in Feb. Okay, wonderful. They'll come in Feb. Folks, we have 2 minutes to go Yes. before we start. ए बाबा तुम लोग प्रशांत को बोलो थोड़े बाल बेच देने को मेरे के। वो इसलिए बना रहे अभी। Sam, I borrowed from my father. शाबाश। कुठे आहेस? Just behind the screen because I didn't get ready for the camera. Okay. So go ahead and get ready in the meantime. It's so nice to have you all, honestly. Yeah, absolutely. मैं कभी कभी सोचता हूं कि एक आदमी प्रताप अहीर, हाँ, वो बाबा से मिले और कितने जुड़ गए तुम लोग, परिवार अक्खा कितना 500 लोग जुड़ गए उनके साथ। बिल्कुल। It is so beautiful. It is so beautiful. जय बाबा हवोवी। जय बाबा। जय बाबा। Sam, this is not accidental. This does not happen through accident or coincidence. It is all divine game. I didn't say it is accidental. No, I'm just adding. See, every soul chooses parents, grandparents. That is true. Janice, could you do the prayer, please? Jai Baba, everybody. Welcome to this Baba Full Thursday evening program from the Bombay Center. Did you all hear the prayer? Prayer could be heard? No. Come home. So nice. I think we'll do it one more time. Sorry. अवतार मेहर बाबा की जय। Is it enough? Yes. Okay. प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिक का अधिक प्रेम करें, और अधिक और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र बन जाएं। और तू हम सबकी ऐसी सहायता कर कि हम अंत तक प्रियतम बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहे। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। Jai Baba, everybody. Welcome to this Baba Full Thursday evening program from our Bombay Center. Before lockdown, we used to meet here on regular basis. Abhi aajkal, because of this Zoom online, the number of people coming to the Bombay Center has reduced, but nevertheless, we have quite a few people sitting here who will be enjoying this program also. Before I start off, I'd like to invite our one and only Lord Meher Baba.
Meher Baba, please come and not only join us, but take over the entire proceedings of this program. Let every word spoken by whosoever speaks be as per your will. Thank you, Baba. Thank you for everything. And the new year is right around the corner. So we wish you all a very, very happy 2023. Usually people make resolutions for New Year. I have two resolutions for myself. One is not to make any resolutions. And the second, and the most important, is to request Baba to take us all that much closer to him, as much as we deserve, or as much, we don't deserve much, at least I don't deserve much, but as much as he wishes and wills us to be. Today, we have with us the extension of Prashant Ahir's family. Extension manje Mrs. and the two lovely children. This was a brainchild of Mr. Jimmy Khan, who had met them in US, and he was maha impressed. So let him introduce them, and then let them take over and say whatever they wish to, or whatever Baba wills them to say. Jimmy, all yours. Thank you. Yeah. Jai Baba, everyone, and thank you, Sam. To introduce the speakers today, we have Tara in the center. Tara is the I beg your pardon. Aarti. Aarti is the mother, Prashant's wife, Baba. and we have Nidhi. I suppose you are the senior one, right? You are the senior. I am the senior. Oh, sorry. I I beg your look pardon. younger. I beg your pardon. So we'll go to the senior first. Asimo is on the right. Asimo is Prashant and Artis. Aarti's son. And on the left is Nidhi. Talking about Asimo, Asimo has done MS in computer science and presently works for Ford company in Michigan. He's staying in Michigan and is data scientist. So that is Asimo for you. Talking about Nidhi, she has also done MS, but in industrial psychology. She lives in Texas, Austin, and she works as strategic consultant at Deloitte. So that's the family for you, and over to you all. You can go ahead and start. Whoever wants to start, please go ahead. Thank you. All yours. All yours. Thank you so much, Uncle. Thank you so much. And it's wonderful to see you all. And thank you so much for having us. Initially, this was going to be Asim and me, but given that both of us stay in US, and after a long period of time, after a couple of months, we all are together under one roof in person. So that's why my parents, both my mother and my father, over enthusiastically and with a lot of zeal, joined us today. So they were insistent that they also be a part of it. So my mom is here and my dad is sitting behind the camera. His towering presence and his nervousness is adding to the program. But the underlining fact of this is that in US, when we were there, Asim and I did a similar talk, and we spoke about our birth story, about when we were born, what happened, and
how the story was, and my mom wasn't pretty much impressed by our storytelling ability, so she insisted that she will recite that story today. So that's why we have her pending. But once again, thank you so much for having us. Thank you to all members of Bombay Center. The Bombay Center holds a very important significance and is of critical importance for both Aseem and me in our life. Our formal induction or initiation into the Baba family, जैसे baptism में वो बच्चे को कैसे वो लगाते हैं church पे, वैसे ही similarly our first formal bringing into the entire Baba family was done at the Bombay Center. So I still remember every Sunday, हर रविवार को, Papa, grandfather used to put us in a car and used to take us to the Bombay Center, and that lovely red carpet, we used to sit on that, and then overlooking was Baba's majestic picture where Baba is nicely situated on that tiger rug. I'm not sure if that's still there, but I think I can see it behind Sam, uncle. It's still there. It is still there. Wonderful. So just that environment itself, and to be in presence of, then it was all the senior members of the Baba family used to be there. Kelkar Kaka used to sit. We had Kishore Mistry, we had Shanti Kaka. All of them just singing songs. So that contributed a lot to Aseem and I growing up and forming our own Meher Baba connection and how that grew stronger. So thanks a lot to the Bombay Center. In fact, the bit of the initial performances like singing and all that, I think we all started in Bombay Center. वो chorus में हम पहले गाते थे और फिर धीरे-धीरे फिर individual गाने या फिर मीडियम में एक साथ गाने लगे. So I think Bombay Center played a large role in propelling us in that direction. क्योंकि मुझे याद है कि मेरा पहला भाषण, my first speech was at Bombay Center. I was in school in those days. And क्या हुआ था कि I was, मम्मी मेरे ख्याल से वाशी या कहीं तो किसी ब्यूटी पार्लर में थी. And I was waiting for my mom. And there was this set of magazines to my left. और फिर उसी में से एक कोई मैगजीन उठा के I was just reading through them and I was just brushing through them. और उसमें एक मैगजीन में I think मुझे एक अचानक मतलब out of nowhere I saw a Meher Baba picture. And I was so मतलब it was such a big thing because I guess not many people know Meher Baba, and it was so surprising कि उस वक्त Meher Baba का फोटो वहां पे दिखा. And I looked at the clock and it was 7 o'clock. And I think that really struck me. और फिर बाद में मुझे पापा ने बताया कि शायद Meher Baba was trying to tell you that it is time for you to pray. And then I guess, but then my dad insisted कि why don't you, क्यों ना तुम ये तुम्हारा experience, why don't you share it in the center? और फिर that was my first speech when I talked about this, and I still remember वो mic adjust करने के, and then the mic was being adjusted and I was standing there and I was looking at all the familiar faces and everyone was so enthusiastic and so because everyone loved me. So they were all very eager to hear. So I think that is something that Bombay Center gave us. Definitely. Program wise, abhi we will start with some of our Aseem and I little bit. We have our own experiences with Baba, about forming our own connection with Baba. And then in conclusion, I'll pass over to my mom to talk about, she has some nice experiences of Mehra Mai's stories. So since it was last week, Mehra Mai's birthday, then I'll ask her to talk about some of those stories. But हाँ तो कहाँ नहीं कहीं होगा यहाँ देख इधर देखो. Miss Kelly, can you mute your mic, please? Thank you. Thank you. So Aseem and I, हमारे बचपन या फिर हमारी पैदाइश दोनों की बाबा फैमिली में हुई है, और ऐसे नहीं कि एक ही बाजू बाबा फैमिली की है. हम दोनों ऐसे एक सैंडविच की तरह, जहाँ पे not just the maternal side but also paternal side, both sides were staunch Baba lovers. So growing up, we never had an iota of doubt कि बाबा God है या नहीं. बचपन से ही we were brought into center, भजन गाना सिखाया था, तो तभी से बाबा का अस्तित्व हमेशा था. सर्वप्रथम तो मम्मी के जो पापा थे, लक्ष्मीकांत बलवंतराव थाड़े, LB थाड़े,
He's no more, but you must have seen, for folks who are hearing his name for the first time, you must have seen him at Amar Tithi. He used to do the announcing earlier. So वो पहले बाबा के संपर्क में आए, and then he brought my grandfather, and that's how the entire family grew in Baba's umbrella. So initially हम लोगों का relation बाबा के साथ वैसा हुआ, and continuing the way we created our own personal relation with Baba was a period of time. And what I mean by that is, initially when we look at Baba, we say he's God. But मेरे जीवन में, when I see right from my childhood till my adulthood, slowly, I have grown to establish my own personal relation with Baba. And I'm sure it's similar to all of you. हम सबका एक अपना अलग एक relation होता है, एक अलग connection होता है, which is very unique to us only and very personal to us. तो वो जिंदगी में बहुत धीरे धीरे हुआ और अभी भी चालू है. तो पहले तो बाबा हमेशा एक बड़े भाई की तरह थे. As an older brother, his presence was always felt through the childhood. Then for a period of time, I don't know why, he transitioned to be my mother. I looked at him as a mother, and Abhi, he is more like a fatherly figure. So this has been a transition for me in terms of my establishment of a relationship with Baba. And for me, I think it was never ki Meher Baba, I would look at it as a brother, as an elderly brother, as a father, as a mother. For me, I think it was very different. I think it was always a one-on-one kind of relationship as a beloved or something. So I guess every one of us had his own way of looking at Baba. So growing up in a Baba family, and I'll pass over to my mom briefly to talk about हमारी childhood की story. But even before we were conceived or came into being, तब से बाबा की छत्र छाया हमेशा हम पे थी, and then till date it's still there. So I'll pass over to her to talk about how we were born and हमारी birth की story. जय बाबा. असीम के वक्त जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे इंजेक्शन हॉस्पिटल सबका बहुत फोबिया था. मतलब मैं बहुत डरी हुई रहती थी. और जैसे ही मैं अपने पेरेंट्स के पास आई 7th मंथ में, तो उस समय मेरे ख्याल से 31st चल रहा था. और दर्शन के क्यू में मैं खड़ी थी, और आदि दुभाष जी जो मतलब बाबा की समाधि के अंदर ड्यूटी कर रहे थे, तो शायद ही वो मुझे जानते हो, तो वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि आई पर्सनली फील कि ऐसे कंडीशन में मैं खुद चाहता हूँ कि आप समाधि के अंदर खड़े रहो और बाबा की ड्यूटी करो. और उन्होंने मुझे वहां से ले जाके अपनी जगह पे खड़ा किया और बाबा की ड्यूटी करने के लिए कहा. तो ये मेरा प्रेगनेंसी में एक फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि किस तरह से एक एक करके बाबा लवर ने मुझे कहो कि बाबा का प्यार दिया, ऐसी कहूंगी मैं. तो उसके बाद फिर मैं प्रोग्राम खत्म होने के बाद मैं अपने घर गई. मेरा मायका तो अहमदनगर है, जैसे आप जानते सभी लोग. तो पिताजी जब भी ट्रस्ट ऑफिस जाते थे तो एरच अंकल बड़े एक्साइटेडली पूछते थे कि क्या क्या हुआ, क्या भी कुछ. तो मेरे बाबा कहते थे कि एरज जी अभी नहीं, अभी तो टाइम है ना. और तो ये अक्सर बार बार होता था. और यही स्टोरी मैंने अपने फादर इन लॉ से सुनी कि प्रशांत के जन्म के वक्त में मेहर बाबा इसी तरह से उन्हें बार बार पूछते थे. उसके बाद फिर जैसे मतलब असीम 9 महीने 9 दिन खत्म हुए, फिर भी पैदा नहीं हुआ. और उस समय पे मुझे मतलब बहुत डर लगता था. तो मंडली के लोग हमेशा, हम लोग अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझते हैं कि वो हमेशा कंसर्न रहते थे, हमारे बारे में पूछते थे सब. तो उन तक ये बात गई थी कि मैं बहुत डरती हूँ. तो कहीं ना कहीं मंडली की तरफ से दीवाना को ये कहा गया था कि आप आरती को कुछ एक्सरसाइज दो, या पर्टिकुलर कोई मेडिसिन तो मैं नहीं कहूंगी, पर जो ऐसे फेज में हेल्पफुल होता है ऐसी कुछ चीजें उसको दो. तो दीवाना ने खास करके मुझे कुछ एक्सरसाइजेस सिखाई थी अपनी तरफ से. कुछ उन्होंने मुझे मेडिसिन ही कहूंगी मैं दिया था. और उसके बाद जब लास्ट पीरियड में मैंने देखा कि रंगोले, जो आप जानते हो कि ट्रस्ट ऑफिस में होते थे मिस्टर रंगोले, जिनको मैं अपने फादर की तरह मानती हूँ, तो उन्होंने
उन्होंने बहुत मम्मी को आके कहा कि मुझे बहुत अपने तहे दिल से लगता है कि मैं इसको ऐसे सिचुएशन में ले जाके बाबा की समाधि का एक बार दर्शन करके लाऊं। तो बिल्कुल मेरा एक लास्ट का समय था, पर मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, आप यदि इच्छा करते हो तो जरूर लेके जाओ। तो उस समय वो लूना थी उनके पास में, तो वो लूना को मुझे बिल्कुल संभाल कर लेके गए और बाबा का दर्शन करा के ऐसे कंडीशन में ले आए। उसके बाद घर आने के बाद डॉक्टर अरविंद चोपड़ा की मदर मिसेस चोपड़ा, जो उसी कॉलोनी में रहने के लिए आई थी हमारे, और वो मम्मी के पास आई और उन्होंने कहा कि मिसेस थाड़ी, मुझे बहुत पर्सनली ऐसे लगता है, मैं कैसे कहूँ, मैं थोड़ा हिचकिचाती हूँ, पर फिर भी मैं आपसे कहना चाहती हूँ। तो मम्मी ने बोला बताओ क्या बात है। तो वो कहने लगे कि मेरे पास बाबा की ओरिजिनल धुनी है, जो मेरे ख्याल से पहले टाइम बाबा ने जो जलाई थी तो उसमें से होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो धुनी के को मैं आरती के पेट पे मलू करके अप्लाई करूं। तो मम्मी ने कहा कोई बात नहीं। तो वो मुझे अपने घर लेके गए और फिर उन्होंने मुझे सुलाया, अपने वार्डरोब से वो धुनी निकाली और मेरे पेट में मली। उसके बाद मॉर्निंग में मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा और फिर असीम का जन्म हुआ। असीम के जन्म के तुरंत बाद मिसेस कलचूरी वहां पे बाबा का प्रसाद लेके आए। हालांकि वो हार्ट पेशेंट थे, पर पूरा स्टेयरकेस चढ़ के वो बाबा का प्रसाद सब बेबी के लिए कटोरी और स्पून लेके आई। और खास बात यह है कि बाबा मंडली की तरफ से मेहराजाद से बाबाज रूम के पास जो बाबा की पिक्चर है, वहां की फोटो के पास जो फूल थे, वो फूल उन्होंने एक बॉटल में दे के हॉस्पिटल भेजे और उन्होंने खास करके कहा कि ये फूल बेबी के पास में रहेंगे जब तक वो वहां पे है। तो वो फूल बॉटल में भरे हुए वैसे ही असीम के बाजू में रखे गए। जब तक मुझे डिस्चार्ज नहीं मिलता वो वैसे ही असीम के बाजू में थे। आज भी वो बॉटल भी मैंने बहुत अच्छे से संभाल के रखी और सूखे और फूल इसमें भर के रखे हैं। शाबाश। अ, ये बॉटल वापस दिखाइए जरा प्लीज। हाँ जी, हाँ। एक और पकड़ो। पंडित सुखा, हाँ। ये ऐसे बॉटल में उन्होंने पूरे बंच ऑफ फ्लावर्स दिए थे। हाँ, ओपन करो। तो फूल तो सूख गए, इसके अंदर मैंने भर दिए हैं। बॉटल हमेशा मेरे कबाड़ में रहती है। कबर्ड में रहती है। ये मेरे लिए बहुत थोड़ा खास है। हाँ। इसको कहते हैं प्रेम। Yes, it is. हाँ, एक फ्लावर जो कि बाबा को रिप्रेजेंट करते हुए आपके पास भेजा गया, जी। उसको इतने सालों तक संभाल के रखा, इसको प्रेम कहते हैं। आज वो फूल भी 30 साल के हो गए। और उसके बाद जब मैं घर आई तो मंडली की तरफ से असीम को चांदी का क्या कहते रैटल, वो हाँ उसने असीम के लिए खास गिफ्ट भेजा था। हाँ। One with a spoon, silver spoon, ना? So तो this ये घुंघरू। जय बाबा। जय बाबा। तो ये रही असीम की स्टोरी। अब मेरी बिटिया के बारे में मैं बोलूंगी कि निधि के वक्त में मैं खुद भी बहुत चाहती थी कि मुझे बेटी पैदा हो, कि प्रशांत को छोटी लड़कियां बड़ी पसंद थी एंड आई वाज जेलस ऑफ दैट कि अरे मुझे भी अपनी बेटी चाहिए। छोटी टू बी अंडरलाइन। तो उस समय डॉक्टर मेहरू के पास मैंने ट्रीटमेंट लेना शुरू किया, मेहरू वाकचिप वाला, उनके पास मैंने। और जैसे मैं अपने चेकअप के लिए उन्होंने मुझे बुलाया तो उन्होंने जान लिया था कि शायद मेरा कंडीशन थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है। तो उन्होंने उस समय जो भी है मुझे हॉस्पिटल में देखने के बाद हम लोग इतने भाग्यशाली है क्योंकि हम बाबा प्रेमी है कि एक डॉक्टर
हमारा चेकअप के बाद घर ले जाते हैं खाना खिलाने। तो उसके बाद वो हमको खाना खिलाने घर लेके गए और उसके बाद मेरा सोनोग्राफी किया। उसमें उन्होंने जान लिया था कि शायद ये प्री मैच्योर बेबी हो सकती है। तो उन्होंने हम दोनों को इंस्ट्रक्शन दिए थे कि हमको बेड रेस्ट लेनी पड़ेगी मुझे, लेकिन वो उम्र हमारी ऐसी थी कि हमको किसी बात का कोई सीरियसनेस नहीं था। तो जैसे किसी एक दिन मुझे अचानक बहुत तकलीफ होने लगी और वो 8वां महीना था, इट वाज 8th मंथ। तो हम दोनों भी बहुत घबरा गए और हमने डॉक्टर मेहरू को फोन किया। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल रुकिए नहीं, इसी वक्त आप तुरंत मलबार हिल आ जाइए। तो उस समय मेरी मम्मी जबलपुर में थी, किसी शादी में गई थी और उसे पता नहीं क्या ड्रीम आया कि मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं और मुझे अहमदनगर ना जाते हुए बॉम्बे जाना है। तो उसने घर में सबको बताया कि अब मुझे भाई तुम नगर की गाड़ी में मत बिठाना, मुझे बॉम्बे पहुंचा देना। तो जैसे मुझे तकलीफ हो रही थी और मैं और प्रशांत मलबार हिल के लिए हॉस्पिटल के लिए निकल रहे थे, घर का बेल बजा और देखा तो मम्मी और पापा दोनों खड़े थे। अरे वाह। हाँ। तो मम्मी ने फिर पूरा डोर अपने हाथ में ले लिया। फिर हम लोग हॉस्पिटल के लिए निकले। प्रशांत बहुत गड़बड़ में गाड़ी चला रहे थे क्योंकि क्रिटिकल कंडीशन थी। और जब जब निधि को तकलीफ होती थी तो मुझे ब्लैकआउट्स होता था ओ। घर में। तो जैसे ही मैं हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टर मेहरू, जिनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनको थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने इस तरह से पूरा इंतजाम किया था कि उन्होंने कहीं भी 1 मिनट भी नहीं गवाया। और ऑपरेशन के पहले जो भी फॉर्मेलिटीज करनी होती वो इतनी फटाफट उन्होंने पूरी कराई और मुझे थिएटर में लेके गए। मैं बहुत ही घबराई हुई थी और मेरे हाथ में मैंने बाबा का एक बैच, घर से निकलते कुछ सूझा नहीं तो मेरे हाथ में मैंने बाबा का बैच लेके गई थी। तो वहां पे कोई तुमको मेटल अंदर सीजर के वक्त में अलाउड नहीं करते, पर मैंने चुपके से उनको ये बैच दिखाया कि डॉक्टर क्या मैं बाबा की पिक्चर रखो अपने साथ। तो उन्होंने कहा रखो रखो, कोई बात नहीं है, रख दो बिंदास। तो मैंने वो तकिया के नीचे छुपा के रखा। और एनेस्थेटिस्ट जो थे वो मुझे एनेस्थेशिया देने के लिए बहुत घबरा रहे थे क्योंकि मेरे हाथ पांव बहुत ठंडे पड़ गए थे। तो उन्होंने काफी थोड़ा सा टाइम लिया और मुझे समझा के फिर मुझे एनेस्थेशिया दिया। जब मैं होश में आई तो मुझे डॉक्टर मेहरू ने कहा कि आरती तुमको लड़की हुई और बहुत सुंदर है। तो बहुत खुश हो गई थी मैं। तो 2 दिन तो मेरा मतलब हॉस्पिटल में ऐसे ही गए। धीरे धीरे मुझे इतना पता चला कि ये क्योंकि ये प्री मैच्योर बेबी है तो उसको इंक्यूबेटर में रखा हुआ है करके, लेकिन किसी ने मुझे ये नहीं बताया था कि ये बहुत सीरियस है करके। तो 2-3 दिन बाद मैंने देखा कि मम्मी पापा पूरी फैमिली बाहर किसी डॉक्टर से बहुत धीरे धीरे बात कर रहे हैं ताकि मुझे कुछ ना समझ में आए, पर मैं जान गई कि समथिंग इज रॉन्ग हियर। तो मैंने मम्मी को बुला के कहा मम्मी प्लीज तुम मुझे बताओ एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो मम्मी ने कहा कि हाँ बेबी थोड़ी ज्यादा ही सीरियस है करके। तो ये मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग चीज थी। मैं तो बिल्कुल मतलब कोलैप्स हो गई कि क्या करें। तो बहुत रोई। उसके बाद मैंने मम्मी से कहा कि मैं खुद डॉक्टर से बात करना चाहती हूँ। तो डॉक्टर परमार करके थे और निधि को वहां पे मलबार हिल हॉस्पिटल से भाटिया हॉस्पिटल लेके गए थे क्योंकि वो बच्चों का खास हॉस्पिटल बॉम्बे में, बॉम्बे सेंट्रल में समझा जाता है। तो डॉक्टर परमार जब अंदर आए तो मैंने कहा कि डॉक्टर आप सच बताइए क्या मेरी बेटी वाकई सीरियस है, और है तो क्या आप वाकई उससे बचा पाओगे। तो डॉक्टर ने कहा हाँ वो बहुत सीरियस है और जहां तक बचाने की बात है मैं डॉक्टर हूं, मैं पूरी कोशिश करूंगा, पर आप उसको रिक्वेस्ट करो, उस पर भरोसा करो करके। तो मैं तो सो नहीं पा रही थी रात में। जब मम्मी बाजू में मेरे सो गई नीचे तो मैंने रात भर ये बाबा का बैच लेके मैंने इस तरह से बाबा की प्रेयर की। मतलब बाबा से हम अक्सर बातें करते हैं, अभी भी जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ फोटो को टच करती हूँ, अपन कुछ ना कुछ बातें करते हैं। लेकिन उस समय का मैं अनुभव बताती को इतनी स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी के साथ बाबा के साथ बात करना और उनके पास जिद करना कि मेरी बेटी को बचाओ। तो वो पूरी रात मैं कर रही थी और वो रोते रोते मैंने उनसे कहा कि तू परवरदिगार है, तू पिता है, तू परमात्मा है, तू साइंटिस्ट है, तू डॉक्टर का डॉक्टर है, और आज मैं तुझे प्रार्थना करती हूँ कि तुम मेरी बेटी को 5 दिन में ठीक कर दो। अब ये 5 दिन का कैलकुलेशन उस समय मेरे दिमाग में क्या था मालूम नहीं, पर मैंने उनसे कहा कि मेरी बेबी को आप 5 दिन में ठीक कर दो।
उसके बाद फिर मुझे डिस्चार्ज मिल गया, मेरी बेटी तो भाटिया में थी। तो डिस्चार्ज के वक्त मैं घर जाते वक्त बहुत रो रही थी क्योंकि खाली हाथ जा रही थी। तो डॉक्टर मेहरू ने कहा ऐसे करो मिसेस थाड़े, उसके साथ एक कोकोनट ले जाओ ताकि उसको अच्छा लगे, उसको खाली हाथ नहीं जाना है। तो इन लोगों ने मेरे हाथ में कोकोनट दे दिया, फिर मैं वो लेके नारियल लेके घर गई और उसे बाजू में रख के फिर मुझे सुलाया जाता था। तो यहाँ पे निधि को जैसे बच्चों का जो आईसीयू रहता है उसमें रखा था और वहां पे सारे बेबीज बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थे और एक बेबी ऑलरेडी वेंटिलेटर पे थी और डॉक्टरों को बिल्कुल 100% पता था कि इसका ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा कम हो रहा है और अब इस बेबी को यदि ऑक्सीजन की जरूरत पड़े तो हम कहाँ से सेकेंड वेंटिलेटर लाएंगे, इस चिंता में वो थे। निधि का हर रोज अलग अलग टेस्ट होता था, डॉक्टर बड़े कंफ्यूज थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली उसे क्या हो रहा है। तो मम्मी मुझे बाद में उन्हें ऐसे लगा कि हो सकता है कि मदर्स फीडिंग के बाद बेबी को शायद कुछ ताकत आए, तो उन्होंने फिर मुझे बुलाया। मम्मी मुझे तैयार करके खाना वाना मुझे दे के लेके जाती थी वहां पे, मैं भी बैठती थी और रात में हमारे फादर इन लॉ वहां पे बैठते थे, रात भर वो बेचारे बैठे रहते थे वहां पे और वो अपना अनुभव कहते कि इतना डर लगता था वहां पे क्योंकि सारे बच्चे सीरियस थे, उनके साथ और एक उन्हीं की उम्र के थे जिनका अपना भी ग्रैंड डॉटर उनकी भी बीमार थी। तो जब भी सिस्टर आती थी तो अनाउंस करके कहती थी कि बेबी ऑफ सो एंड सो नहीं रही करके। तो मेरे फादर इन लॉ कहते थे, बार बार प्रेयर करता था कि ये नौबत हम पे ना आए करके। तो मुझे फिर लेके गए तो मुझे इंस्ट्रक्शन दिया कि किसी भी तरह से तुम बेबी को किस विस नहीं करोगी और फिर मुझे वो हाथ सैनिटाइज करके उनका गाउन वाउन पहना के बालों में कपड़ा बांध के उनके स्लीपर्स डाल के लेके गए। मेरी मम्मी को भी साथ में रखा, फिर ये सिलसिला चलता रहा और वहां पे एरच अंकल ने खास करके पूछा कि कैसी है, तो पिताजी ने कहा नहीं एरच भाई बेबी बहुत सीरियस है। तो एरच अंकल ने कहा क्या तूने बाबा से कहा ये बात को, समाधि पे। तो पिताजी ने कहा एरच भाई बाबा के पास तो अपन वैसे भी जाते और बाबा तो सब कुछ जानते हैं ना। तो एरच अंकल ने कहा ऐसे नहीं, तुम समाधि पे खुद जाओ और बाबा से इसी बारे में प्रेयर करो करके। ये इंस्ट्रक्शन उन्होंने हमारे पिताजी को दिए और यहाँ पे धीरे धीरे के मुझे बोलने में अच्छा नहीं लगता पर धीरे धीरे काफी बेबीज उसमें से कम होते गए, गुजर गए। निधि को जॉन्डिस हो गया बाद में, उसको फिर वो जो ब्लू लाइट जिसको बिली लाइट कहते उसमें रखा गया। हम तो बहुत डरे हुए थे, लेकिन 5 दिन में ये बेबी डॉक्टर भी नहीं जानते, डॉक्टर भी डायग्नोस नहीं कर सके कि एग्जैक्टली से क्या हुआ था और वो किस तरह से ठीक हुए। अपने आप वो ठीक हो गई और 5वें दिन बाद जब डॉक्टर मतलब मुझे दे नहीं रहे थे तो मुझे कुछ लोगों ने समझाया कि तुम कहो कि ये मुझे ऑलरेडी एक बेटा है, मैं उसे ले जा सकती, मुझे एक्सपीरियंस है और मेरे साथ कोई सीनियर्स है। तो फिर मैंने डॉक्टर की परमिशन ली, डॉक्टर ने कहा था ठीक है मैं तुम्हारे साथ इसे दूंगा पर तुम बिल्कुल कोई भी फंक्शन नहीं करोगे साल भर में, जैसे नेम सेरेमनी होता है या कुछ, और बेबी को हमेशा पीलोस पे रखोगे कैरी करते वक्त, और नहाने की भी काफी इंस्ट्रक्शन थे कि किस तरह से नहलाया जाएगा। तो हम पहले निधि को लेके गए, हमने सबसे पहले नारियल जो हमारे हाथ में था उसको गेटवे ऑफ इंडिया के समुद्र में उसको विसर्जित किया और बाद में इसको लेके वहीं से सीधा अपने बॉम्बे सेंटर आए। बाबा की बड़ी सी पिक्चर है, वो पिक्चर के पैरों में चरणों में बाबा के उसको रखा और मुझे और प्रशांत को, और ये ऐसे ही मतलब सेम उसी तरह से ज्योति ताई मतलब प्रशांत की जो एल्डर सिस्टर है उसके जन्म के बाद भी बाबा ने ये इंस्ट्रक्शन दिए थे कि बेबी घर नहीं जाएगी, पहले गुरु प्रसाद आएगी करके। तो निधि को बाबा के चरणों पे रखा तो मैं और प्रशांत जान गए थे कि ये डेलिकेट बेबी रहेगी, सारे बच्चों से अलग रहेगी, हमको कुछ खास ध्यान देना पड़ेगा, पर फिर भी हम खुश थे कि बाबा ने हमको हमारी बेटी वापस की। ऐसा कुछ नहीं हुआ, बड़ी चुलबुली बच्ची थी, आज यूएस चली गई है। और इसी के साथ साथ मुझे और एक बात याद आती, उस वक्त मैं बॉम्बे सेंटर नहीं आई थी पर अलोबा जी आए थे और उनका भाषण चल रहा था और आप जानते हो कि अलोबा जी को कितना साइलेंस लगता है भाषण के वक्त में, वो बड़े डिसिप्लिन है।
तो ये तो चुलबुली थी। असीम वैसे बड़ा शांत होता था, वो किसी की भी गोदी में बैठा रहता था, ये इधर से उधर करती थी। तो अलोईबा जी ने देखा कि ये इधर से उधर कह रही, तो उन्होंने कहा ये किसका बच्चा है, ये बच्चा किसका है। तो प्रशांत को तो अब लगा कि भाई मुझे तो बहुत गाली पड़ेगी, प्रशांत तो बिल्कुल उठे ही नहीं। लेकिन बाबा बेचारे ईमानदारी में उठ के खड़े रह गए कि अलोबा जी ये मेरी ग्रैंड डॉटर है करके। तो उन्होंने कहा इसको बिल्कुल डांटना नहीं किसी भी तरह से, और इसको हाथ भी नहीं लगाना, इसको मारना भी नहीं। ये बच्चा बाबा का बहुत कार्य करने वाला है, बहुत काम करने वाला है बाबा का करके उन्होंने कहा। और ऐसे कह के उन्होंने अपने पास के स्वीट्स इसको दिए, हाँ, कि सिर्फ ये खाएगी। सिर्फ ये खाएगी और कोई नहीं करेगा। और सिर्फ मैंने मैं मांगता था लेकिन मुझे नहीं मिलते। ये कौन से साल की बात है? असीम का तो 92 और निधि 94 में। नहीं, पर ये अलोबा अलोबा जी आए तो 97 होगा। 97 हो सकता इनके बर्थ की बात कभी की है? When was he born? Which year? 4 असीम निधि- 92 और मैं 94। 94 में। 94. Which month? असीम 31 मार्च नहीं, और निधि 10th में। 8th में. 10th। अच्छा, why I'm asking all this is कि इसके पीछे एक छोटी सी बैकग्राउंड है। हाँ, उस साल अमर तिथि पे प्रताप जी और मैं कोइंसिडेंटली लाइन में साथ में खड़े हो गए थे इन द क्यू फॉर दर्शन, समाधि के दर्शन के लिए। तो लोग अपने हार ये वो हाथ में लेके सब, आई थिंक मेरे भी हाथ में था। तो प्रताप जी ने उस समय बोला था कि सैम, मैं ये हार वगैरह में नहीं मानता हूं, मैंने आज तक कभी भी हार नहीं चढ़ाया है। कैजुअली ही मेंशन एंड दैट वाज ओवर। फिर ये आई थिंक मई महीने में, मुझे अभी भी याद है, मैं ऐसे ही बैठा था, संडे का प्रोग्राम था। प्रताप जी वॉक्स इन क्वाइटली, हाथ में एक इतना बड़ा हार लेके बता रहे थे। तो उस समय तो मैं कुछ नहीं बोल सका। बाद में जब मैंने जाके उनसे बात की तो बोला, सैम क्या बताऊं, मेरी पोती कैसे जन्म हुई है वो मुझे कुछ मालूम नहीं, और बस टू एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड आई हैव डन दिस टू बाबा। एंड देन ही मेंशन कि देखो बाबा कैसे मेरा ईगो तोड़ा कि मैंने आज तक हार नहीं चढ़ाया, तो चुपचाप में आके आज मेरे को हार चढ़ा देना पड़ा। लवली। Wonderful. वाह। इस हार के, since you mentioned this हार story, I remembered my experience at मेहराबाद also. थोड़ा सेगवे कर रही हूँ एक्सपीरियंस पे। पर सिमिलरली बाबा का, जैसे आपने कहा कि प्रताप अहीर या दादाजी का हमेशा ऐसा था कि ज्यादा ऐसे बाकी की चीजें नहीं करते थे, जैसे फूल रखना है या फिर दिया प्रसादी रखना है, फ्रूट्स रखने हैं। तो ग्रोइंग अप हमने भी ऐसा ज्यादा कभी किया नहीं। लेकिन एक दिन हम मेहराबाद के लिए निकले थे और आई डोंट नो व्हाई रास्ते पे पुणे टू नगर वो सुपा गांव लगता है। करेक्ट। और वहाँ पे आपने देखा होगा बहुत से सुंदर ऐसे बड़े बड़े हार। हाँ। तो यूजुअली पता नहीं, मुझे ऐसे कभी ख्याल आता नहीं। उस दिन जब जा रही थी तो दिमाग में ख्याल आया कि ये एक हार ले लेते, समाधि पे चढ़ाते बाबा के लिए तो कितना अच्छा होता। वी वुड हैव गॉट समथिंग फॉर बाबा, और ये लेके गए होते तो अच्छा होता। और ऐसे मैं देख रही हूँ फूलों को, कार स्पीड में जा रही है और थॉट वैसे ही रह गया, कार आगे चली गई एंड आई कुडंट बाय वो गार्लैंड बाबा के लिए। तो आई रीच द समाधि, और समाधि में कम भीड़ थी और मैं लाइन में खड़ी थी और दिमाग में वही एक विचार था कि विश आई हैड टेकन द गार्लैंड। अगर सोच आया था, थॉट आया था तो ले लेना चाहिए था। पता नहीं मैंने क्यों नहीं लिया। और ऐसे ही मैं सोच रही हूँ और आई कम क्लोजर टू, मेरा टर्न आता है बाबा के लिए, तो 2 ही लोग बचे थे। और मैं फिर आई एम थिंकिंग दैट विश आई हैड डन समथिंग, कुछ तो खाली हाथ आई हूँ, आई शुड हैव ब्रॉट एटलीस्ट सम फ्लावर्स फॉर बाबा। और ऐसे करके मेरे आगे एक जेंटलमैन खड़े हैं जिनको मैं जानती नहीं थी तभी, एंड आई डोंट नो, कंप्लीटली रैंडम पर्सन।
and he is right in front of me. उनका टर्न आने ही वाला है समाधि में अंदर जाने के लिए, और वो अचानक से मुड़ते हैं, and he is holding this big rose, and he suddenly hands over the rose to me without saying anything, और वो अंदर चले जाता है. And then I'm like, Baba knows each and every thought that's going into his lover's mind, and Baba ensures कि वो complete हो. And then I was able to offer that flower or that fool to Baba. He always answers your innermost desire, you know. आपने चाहा था कि उनको फूल अर्पण कर, and this has happened to quite a few people. मैंने बहुत लोगों से ये कहानी सुनी है, शादी पे खास करके, कि उन लोग फ्लावर कोई कारण से नहीं ला पाए हैं, लेकिन somebody comes and hands over the flower कि चलो बाबा को चढ़ा. Correct. Asim, you want to tell your experience of वो visa the experience? Yeah, sure. So, कुछ एक गाना हो जाए कि बॉस वो जरूर जरूर इनको कुठलं गाणं गायचं? कुठलं हे जोजोगी म्हणे सगळं? if you're in the mood to say something, say it and then गाना. No, नहीं चलेगा, एक गाना लेते हैं. any हे नहीं तो बस जोजोगी ठीक है काय कुठलं एक सांग ना. नहीं घे जो हे घेते प्रभू तुम मितवा. बाहेर भेट बाकी घेऊ. पाय कसा ओलांडू मी देवा तुझ्या दारीचा उंबरा, पाय धुळीने माखले मळविले पितांबरा. कसा ओलांडू मी देवा तुझ्या दारीचा उंबरा, पाय धुळीने माखले. चित्तरविकात कशी घडावी पूजा, चित्तरविकात कशी घडावी पूजा. संसार सुखाचा नाश नाही मुळी हे तू दुजा. संसार सुखाचा नाश नाही मुळी हे तू दुजा. सर्व साक्षी म्हणवित तुझला, सर्व साक्षी म्हणवित तुझला. मारविले आडंबरा, कसा ओलांडू मी देवा तुझ्या दारीचा उंबरा. पाय धुळीने माखले मळविले पितांबरा. कसा ओलांडू मी देवा तुझ्या दारीचा उंबरा. पाय धुळीने माखले. दोष राहिला अंगात विचलित मनोवृत्ती. कृपा करोनी आल्यावे माझ्या मनाला निवृत्ती. दोष राहिला अंगात विचलित मनोवृत्ती. कृपा करोनी आल्यावे माझ्या मनाला निवृत्ती. मातीमध्ये राहून कैसे, मातीमध्ये राहून कैसे कवटाळू मी अंबरा. कसा ओलांडू
सरले वेळ मेहर बाबा घेतो नाम नव्याने मुहूर्त मेळ मेहर बाबा घेतो नाम नव्याने मुहूर्त मेळ प्रशांतात जगतो धारक प्रशांतात जगतो धारक वाऱ्यावरी सोडील भरा कसा ओलांडू मी देवा तुझ्या दारीचा कुंभरा पाय धुळीने माखले मळविले पितांबरा कसा ओलांडू मी देवा तुझ्या दारीचा कुंभरा तुझ्या दारीचा कुंभरा तुझ्या दारीचा कुंभरा. जय बाबा. जय बाबा. Written by Prashant. Written by Prashant. Yes. The song is the essence of it is that my feet are covered with mud. How do I cross the threshold of your samadhi? Beautiful. It is beautiful. मैसेज भेजा है नरेश कोहली, रीता कोहली ने. बाबा bless you all. Beautiful. Thank you. Thank you. Jai Baba. Jai Jai Baba. Uncle, let us know how we are doing on time so we can We've got about 15 minutes more to go. 15 minutes. Okay. No, Meera Mai just went. Then we'll jump to Mehra Mai's because Mehra Mai's birthday happened last week. So we'll just talk about one Mehra Mai story. And then there's a song that Mehra Mai really liked, which we'll sing. Okay, fine, fine. Story sang. फक्त sentence. हाँ. सॉन्ग की स्टोरी सांगतो. ओके ओके. अच्छा मुझे ऐसे तो लोग कहते हैं कि हमने बाबा को देखा और बाबा को देखने वाली काफी भाग्यशाली मैं समझती हूँ पर्सनली, लेकिन साथ ही साथ मुझे इस बात का कभी दुख नहीं हुआ कि बाबा का सहवास हमको नहीं मिला या बाबा को हमको देखने नहीं मिला. ऐसे तो मैं खुद 1965 में हुई और मम्मी ने कहा है कि बाबा ने तुमको भी गोद में लिया है, लेकिन इसके बावजूद मुझे कभी भी मैंने बाबा को नहीं दिखाया, सहवास नहीं मिला, ऐसा नहीं लगा. इसका कारण एक तो जिस फैमिली में मेरा जन्म हुआ है वहां पे जैसे बचपन से ही बाबा कौन है या बाबा वाकई ईश्वर है ऐसे पूछने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी. जैसे हम माँ बाप का इंट्रोडक्शन नहीं मांगते उसी तरह से. और फॉर्चुनेटली ऐसी फैमिली में मेरी शादी हुई जहां इसी तरह का वातावरण था. और उसके साथ दूसरी और एक बात है कि अहमदनगर में मेरा बचपना गया, मेरा स्कूलिंग, मेरा कॉलेज, तो ये बाबा मंडली के साथ बीच बीच में जाना, उनको मिलना, ये भी नसीब हुआ. बाबा की समाधि पे बार बार जाना, ये भी एक अपॉर्चुनिटी हमेशा रही. और अक्सर जब डांस करते थे तो मेहरा माई मनी आंटी वो स्टेज से हमको नीचे बुला के प्यार देते थे, बात करते थे, कभी कभी बाबा का बैच देते थे. तो इस तरह का माहौल था. मेहरा माई अक्सर बहुत कंसर्न होती थी. मतलब मेरे शादी के वक्त भी उन्होंने मेरे शादी के वक्त में मंडली के लोगों ने उनका एक ये नेकलेस मुझे भेजा था और खास करके कहा गया था कि ये बीच बीच में पहनते रहना करके. बाबा की पिक्चर थी, 2 एनवलप में मुझे और प्रशांत को कुछ अमाउंट दी गई और साथ ही में मेहरा माई का अपना नेकलेस और इयररिंग्स दिए और मुझे कहा गया था कि इसको पहनना है तुमको. तो मुझे जो बचपन की यादें हैं उसमें केसी हमारी टेनेंट थी, केसी कुक, और किसी एक दिन वो मुझे लेके गई मेहराजाद. तो मुझे कहा चलो तुमको मेहराजाद हमारे साथ आना है. तो बाबाज रूम के अपोजिट जो मेहरा माई का अपना रूम और शायद किचन है वहां पे, तो मैंने अंदर जाके देखा तो मेहरा माई ऐसे बैठे हुए थे और बाजू में कुछ लेडीज थी, मेरे ख्याल से कुछ वेस्टर्नर्स थे, पारसी थे, मैं उनको पर्सनली तो नहीं जानती. तो मेहरा माई के ने अपने बाजू में मुझे बिठा लिया और बड़े प्यार से मुझे कहा कि पहले तो पूछताछ की, उसके बाद कहा कि आरती तुम मुझे एक कृष्ण का गाना गाकर सुनाओ. तो मैंने एक कृष्ण का गाना उस समय गा के उनको सुनाया
उसके बाद फिर उन्होंने मुझे कहा कि आरती तुम वो गाना गाओ जो मैंने तुम्हारी मम्मी को दिया था और मुझे बहुत पसंद है। तो वो गाना है मुरलिया दे दो राधा प्यारी। तो वो गाने के पीछे की स्टोरी ये है कि मेहरा माई ने मेरी मम्मी को गाना सुनाने के लिए एक बार मेहराजाद बुलाया और अपने रूम में ले जाके वो पुराना रिकॉर्डिंग जो होता है ना, तो उससे उनको वो गाना सुनाया और मम्मी को खास करके कहा कि सुनीता तुमको ये गाना सीखना है, मैं चाहती हूँ। और साथ ही साथ उन्होंने बाबा का ये अनुभव बताया कि बाबा जब प्रेम आश्रम में थे तो बाबा ने खुद उस गाने पे कुछ बच्चों का डांस बिठाया था। तो फिर मम्मी ने उस गाने को उस समय टेप रिकॉर्ड होता था, तो मम्मी ने रिकॉर्ड करके उस गाने को लाया और घर में सीख के पहला डांस केसी कुक और मेरी जो सिस्टर है अलका जो कनाडा में रहती है, वो दोनों ने परफॉर्म किया था मेहर नजर में, जो मेहरा माई ने बहुत पसंद किया। मैंने उस डांस को उसके बाद किया था कुछ सालों बाद। तो ये गाना जब मुझे मेहरा माई ने गाने के लिए कहा तो मैंने कहा कि मेहरा माई हो सकता कि मुझे पूरा गाना याद ना है। तो उन्होंने कहा अरे कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ गाऊंगी करके। तो जैसे मैंने गाना शुरू किया, मेहरा भाई भी मेरे साथ गा रहे थे। एक स्टैंजा होने के बाद मैंने थोड़ा उनके पास देखा तो बिल्कुल मतलब वो किचन में मेहरा माई की पिन ड्रॉप साइलेंस थी, लाइट भी बहुत धीमी सी थी, सब लोग इतने अटेंशन से मेहरा माई को देख रहे थे। और मैंने जब उनकी शक्ल पे देखा, उनके फेस के को देखा, वो मेरे साथ गा रही थी पूरा गाना और आंखें बंद करके उनके एक्सप्रेशंस इतने खूबसूरत थे, मैं कह नहीं सकती, मेरे पास लफ्ज नहीं, पर इतना जरूर कहूंगी कि वो सच में बाबा को फील कर रही थी वो गाने के जरिए। तो ये वो गाने की स्टोरी है। ये दूसरी स्टोरी समझ। तो उसके बाद फिर मैं कुछ से मैं वहां निकाल के घर आई, कुछ साल बीत गए और मेहरा माई का बर्थडे था। तो उसमें एलन ने एक ड्रामा किया था कंडक्ट, तो उसमें मुझे उनके डांस में पार्टिसिपेट होना था। उस डांस में मैं थी, केलकर अंकल की बेटी मनी थी, कुछ वेस्टर्नर्स थे लड़कियां, हम सब यंग ग्रुप उस ड्रामा में डांस के लिए परफॉर्म करने के लिए था। और उस समय मैं कॉलेज में थी और मेरे पापा हमेशा चाहते थे कि हम अपना भी एक अलग से इंडिविजुअल डांस करें। तो मेरे पिताजी बहुत मुझे फोर्स कर रहे थे कि आरती क्यों ना तुम एक डांस करती हो। तो कॉलेज का वो दौर था, पता नहीं उस समय क्या भूत सवार रहता, मैं कहती थी नहीं बाबा मुझे नहीं करना है, क्योंकि अब मैं बड़ी हो गई और घर घर में टीवी आ गए थे। तो लोग क्लासिकल करते थे, कथक करते थे, भरतनाट्यम करते थे, मुझे ऐसा लगता था कि हम लोग ये क्या करते हैं, हमने कुछ भी नहीं सीखा इस तरह से। तो मैं बिल्कुल आखिर तक मना कर रही थी और मेरे पिताजी बड़े नाराज बैठे थे। मैंने कहा नहीं नहीं, अब मैंने उसमें पार्ट लिया है, अब मैं अलग से नहीं करूंगी करके। तो फंक्शन के बिल्कुल 1 या 2 दिन पहले केसी घर पे आई और उसने मेहरा माई का मैसेज मेरे लिए लाया कि आरती मेहरा वांट्स यू टू डांस ऑन राधा कृष्ण सॉन्ग। ये पर्सनली मेहरा माई चाहती है कि आप राधा कृष्ण का डांस करें। तो पापा ने कहा अब तो तुम बिल्कुल भाग नहीं सकती, आपको करना ही होगा करके। तो मेरे साथ मेरी कजिन थी डॉक्टर ज्योति करके, तो उसने कहा कि मैं कृष्ण बनूंगी तुम राधा बनो, हम दोनों मिलके डांस करते हैं। तो इस तरह से हमने घर में वो डांस की प्रैक्टिस की। और आपको तो पता है कि एलन कितनी पर्टिकुलर है अपने ड्रामा के बारे में, उनकी रिहर्सल बहुत जोरों शोरों में चलती है। तो फाइनल रिहर्सल के वक्त में उन्होंने हमको मेहराबाद बुलाया और अपने वो बड़े स्टेज पे उन्होंने रिहर्सल रखी। तो वो होने के बाद फिर मेरा नाम उसमें दिया गया कि इसके बाद आरती का डांस है। और एलन का बहुत बड़ा मतलब वो उसके ड्रामा का जो कर्टन उन्होंने बनाया था वो लंबा सा लगा हुआ था। तो मुझे जब डांस के प्रैक्टिस के लिए, फाइनल प्रैक्टिस के लिए बोला, मैंने कहा एलन आई वोंट बी एबल टू डांस। तो उसने कहा कि यू वांट मी टू रिमूव दिस कर्टन। तो मैंने कहा करना पड़ेगा, क्योंकि वो डांस ही ऐसा था, राधा कृष्ण बहुत मूड में है, कृष्ण बांसुरी बजाता है, राजा उसके पीछे भागती, ये सब था उसमें सीन। तो एलन पता नहीं कौन से मूड में थे, वो एकदम ही गुस्सा हो गया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, मैं किसी भी तरह से कर्टन को नहीं हटाऊंगा, तुमको डांस करना है तो बस इतने एरिया में डांस करना पड़ेगा। और एलन ने हो सकता कुछ और मूड में हो, उन्होंने मुझे बहुत डांट दिया। तो मैं तो अभी, वो जमाना ऐसा था कि टीनेज था, तो मैंने वहीं पे रोना शुरू कर दिया
मेरी सिस्टर भी बहुत डर के देखने लगी मुझे। तो केसी वहां पे दौड़ के, यार केसी ने एलन को समझा कि एलन दिस हैज बीन टोल्ड बाय मेहरा, शी वांट्स टू सी दिस डांस, ऐसे कुछ उसने अपने तरीके से एलन को समझाया। तो फिर तो मेरा डांस का प्रैक्टिस वहां पे फाइनल प्रैक्टिस हुआ ही नहीं। तो केसी ने, फिर मैं कोने में जाके रो रही थी तो मुझे आके समझाया, मेरा मूड चेंज होने के लिए कहा कि आरती व्हाई डोंट यू कम टुमारो मॉर्निंग, वहां मेहरा आने वाली है तो हम लोग को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि बाबा की समाधि पे हम चद्दर डालेंगे और फूलों की चद्दर बिछाएंगे, ये सब हम करेंगे, तुम भी मेरे साथ आ जाओ हाथ बटाने। तो मैंने आंखें पोंछते पोंछते कहा चलो ठीक है मैं भी आती हूँ करके। तो दूसरे दिन सवेरे हम गए। केसी बेचारी बहुत मुझे झेल रही थी क्योंकि उसे पता चल गया था कि बड़ी दुखी है करके। तो हमने वो सब कुछ किया। उसके बाद मेहरा माई आई, उन्होंने फिर बाबा की आरती हुई, प्रार्थना हुई, गुजराती आरती हुई। ये सब होने के कुछ देर बाद, मेरे ख्याल से कुछ समय गया होगा, और अपना जो नया स्टेज है उसमें बहुत बड़ी आग लग गई पूरी। ओहो। तो सब लोग चिल्लाने लगे, दौड़ने लगे। तो हमको कुछ वेस्टर्नर्स ने पीछे भगाया कि भागो यहाँ से करके। तो मैं अपने कजिन का हाथ पकड़ के पीछे आ गई और ओल्ड स्टेज के पास पीठ करके खड़ी रह गई। आग इतनी भयंकर थी, बिल्कुल फटाफट सब कुछ जल रहा था और हम लोग डर के देख रहे थे, लोग भी भाग रहे थे और बुझाने जैसी वो आग ही नहीं थी। तो ऐसे गड़बड़ में मैंने देखा कि एलन भागते हुए मेरे पास आए और एलन ने मेरा हाथ पकड़ के कहा, आरती हैव यू सीन द कर्टन इज गॉन। और तब मैंने देखा कि आग सिर्फ उस कर्टन को लगी हुई थी। क्या खुदा। और पूरा कर्टन, जो इतना बड़ा कर्टन था, वो धीरे धीरे जलता था, उसका टुकड़ा कपड़ों का नीचे गिरता था, फिर वो ऊपर चलती थी। और एलन ने मेरा हाथ पकड़ के, एलन कांप रहा था, एलन ने मुझे कहा सी बाबा वांटेड दिस, द कर्टन इज गॉन। और तब मुझे ख्याल आया कि अरे ये आग तो कर्टन को लगी है, मतलब तब तक मेरे भी दिमाग में नहीं आया। और धीरे धीरे करके ऐसे मानो जैसे सिर्फ कर्टन जलने के लिए वो आग थी और आग अपने आप बंद हो गई। और फिर दोपहर में हमारा प्रोग्राम हुआ, पूरा स्टेज खाली था। ऐसा तो मैं नहीं चाहती थी पर था। और फिर मैंने और मेरी सिस्टर ने वो डांस किया। डांस करते करते जस्ट मेरी नजर मेहरा माई पे पड़ी। वो इतनी एंजॉय कर रही थी, हंस रही थी, शर्मा रही थी। मैं बातों में नहीं बता सकती, पर मैं इतना जरूर कहूंगी कि वो बाबा किसी और किसको याद करती हो। तो ये मेरी लास्ट। और हाँ, तो उसके बाद फिर मेहरा माई का वो लास्ट बर्थडे था। उन्होंने कहा भी कि इसके बाद नो मोर सेलिब्रेशंस, ऐसा कहा था। और फिर उसके बाद That was the last बर्थडे। तो ये वही गाना we'll sing and then we And can conclude. conclude. So this is our last song, and then we. आसिफ, तुझे पेटी वरची खाली घेते. ठीक है. मुरलिया दे दो राधा प्यारी, मुरलिया दे दो राधा प्यारी, मुरलिया मैं नहीं देनी मुरारी, मुरलिया मैं नहीं देनी मुरारी। बादल बिन जैसे मोरनी जस और चंद्र बिना जैसे रजनी, बादल बिन जैसे मोरनी रस और चंद्र बिना जैसे रजनी, वैसे मुरली बिना मुझे मुरली वाला कौन कहे रे सजनी। दे दो राधा प्यारी मुरलिया, दे दो राधा प्यारी। मैं जान गई तुम्हारी चतुराई, जान गई तुम्हारी चतुराई, मुरली न दूंगी कन्हाई, मुरली न दूंगी
होगी कन्हाई, मिल जाए मुरली तो फिर न मिलोगे, झूठी बात बनाई, झूठी बात बनाई। दे दो राधा प्यारी मुरलिया, दे दो राधा प्यारी। मुरली बिन कहो कैसे प्यारी, मुरली बिन कहो कैसे प्यारी, छुप छुप तुम्हें बुलाए, छुप छुप तुम्हें बुलाए। अब मान लो मोरी कहो कर जोरी, मान लो मोरी कहो कर जोरी, तुम्हें कभी न सताऊं सताऊं, तुम्हें कभी न सताऊं। दे दो राधा प्यारी मुरलिया, दे दो राधा प्यारी। इस मुरली की धुन सुना कर निस दिन मुझे रुलाए, बन बन फिरू गली कुंजन में, बन बन फिरू गली कुंजन में, ऐसी करी चतुराई तुमने, ऐसी करी चतुराई। फिर न सताओ फिर न रुलाओ, फिर न सताओ फिर न रुलाओ, जो मैं मुरली पाऊं, दोनों मिलकर विश्व के घरे घरे, दोनों मिलकर विश्व के घरे घरे, प्रेम की जोत जलाओ जलाओ, प्रेम की जोत जलाओ। मुरलिया दे दो राधा प्यारी, मुरलिया दे दो राधा प्यारी, मुरलिया ले लो कृष्ण मुरारी, मुरलिया ले लो कृष्ण मुरारी। अवतार मेहर बाबा की जय। It Sorry for your overtime. Yeah. was not only three of y'all singing, there was Havuvi Dada Chanji background. She was singing word for word. Oh, Wow, Wonderful. love it. Just picked up the lyrics from Mera or whatever. I really don't know. But वाह, sign off हो गई है कि क्या वो चली गई है. Otherwise, I would request her to come and sing at least one or two lines. Absolutely. Are you there? नहीं, वो नहीं है यहाँ पे. But she's there. Havuvi. जय बाबा हवोवी. नहीं, वो भाग गई है मेरे ख्याल से. शर्मा गई होगी. शायद आ गए वो. I think I can see her. नहीं. उसने कर दिया है, वीडियो ऑडियो दोनों ऑफ कर दिया है. Doesn't really matter. Folks, I want to conclude this program by saying just a few things. अगर किसी ने हमें बाबा की मौजूदगी का एहसास कराया है तो ये आप लोगों ने टुडे.
it was, I have no words to express this. जब आपने ये नीति की डिलीवरी का जो बयान किया वगैरह वगैरह, and the part that Baba played in all this, it was so touching. और खास करके मैं एक जरा थोड़ा सा इमोशनल इडियट हूँ, बहुत ही टच हुआ ये. And we are all so blessed, all of us. We are all, हाँ वो भी आ भी गई, वो भी. Please, let's enjoy the program. Yeah, I just wanted to sing one or two lines of this song that you were singing in. Yeah, I won't fuss, but I really let the children, everybody enjoy. We've so enjoyed this. Let's be not spoil it by croaking. Right now, getting over a very bad cough. Yeah, And I all can I say the line. De do Radha Pyari Muraliya, De do Radha Pyari. And Mera always loved, Radha and Krishna duet. Years ago, Mera herself took so much interest when both Shireen and Meru were asked to do a, Radha and Krishna dance. And Meru was Radha, and because Shireen is tall, and for some reason, she was made Krishna. And Mera, because that time we didn't take all the costumes and all from Bombay to Nagar. And that time, Mera herself personally, was so interested that she said, I do this, do that, like she choreographed, or whatever you call that word. She made them wear the clothes, she even designed like, I wear, I cut. So this brought to mind that also. And as a lovely story, I don't know time, but this story is very beautiful about Radha and Krishna. You think take time off another time maybe otherwise? Very quickly, not kind of. As quick as possible. This was during the time when Baba dropped his body, and Mera, just to be with Mera, we were always along going around with Mera. And somebody talked about Rukmini and Krishna and Radha's love for Krishna and vice versa. And Mera told us this lovely story, almost near Mansari's kitchen. We were all walking past that somebody asked Lord Krishna, whom do you love more, Radha or Rukmini? So he didn't answer. And then suddenly, they were walking in a garden, so Krishna, a thorn hurt Krishna, his finger. So Rukmini ran to get a medicine or get some sort of a bandage. But what did Radha do? She saw her beautiful silk sari and bandaged his hand. So he said, here is your answer. I still remember that so vividly, that story. This is your answer. He loved his humanity and he loved his wife. But who do you love more? This was the answer, That's how Radha, Krishna, beautiful, beautiful story is kept. Thank you very much. I'm trying to cut it as short as possible. So, yeah, Jai Baba. I'm trying to get back to my To sign off now, and we'll be doing the Aarti. Yeah, that's. I have one request that this family joins us again next Thursday. Need one more episode. Haji? Need one more episode with them. ये देखो कुंडा नाफने ने बोला है अभी पड़ेगा. We enjoyed very much. Thank you. Thank you. Hey Baba, and thank you. Happy New Year, everybody. Hey Baba, bring us closer and closer to Jai Baba. Beautiful. ये आरती होगी. Sangeeta Aarti. Baba Nigeban. अवतार मेहर बाबा की जय.
हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्भुत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और कोई रूप नहीं है। तुम अविभाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंडीय हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो। तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो। तुम सब लोगों पर हो और समस्त लोगों से परे भी हो। तुम तीनों भुवनों में हो और तीनों भुवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सदैव परोपकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपूर्ण एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचे में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम पर ब्रह्म हो और परात परिपर ब्रह्म भी हो। तुम पर ब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजमान हो और मर्द हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम यह सत अथा एकमात्र पूज्य है। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, और सभी निंदा, पाखंड, दम या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को डूब देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर डूब गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभु, आज आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए, और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है, उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर
कि हम तुझसे अधिक अधिक प्रेम करें और अधिक और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र बन जाए। और तू हम सबकी ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक प्रियतम बाबा का दामन जोड़ता से पकड़े रहे। अवतार मेहर बाबा की जय। बुझावे नार जहलतनी ये कर कुद रत्न फरमातु छेलागी आश भक्तों ने के बख्शे नूरे मातु अयामूल शत मेहर बाबा चरण पर तुझ ना धरिए सर खुदाना जात तीवा के फतई बै तो मेहर बातू तुझे माँ लिख हकीकत नो तु आशिक बीने आरे भी तुझे दरी याए वहदत मार फतनो होई तू फातू हमोरे है रवने ऐसा लेक बख्शे ज्ञान इजदनु के तू पर महात्मा ज्ञानी चने मुख तारे इरफातु खुदाना प्रेम नो प्यालो पिलावी मस्त हमने कर छे तुझ पर जान सदके साकिया पीद पैमा तू हमारी नाव भर दरिए तरावे तो हमें तरिए हमारा ना खुदा ए मेहर बाबा छेनगे बातू हमारा ना खुदा ए मेहर बाबा छेनगे बातू बुझावे नार जहलतनी कर कुद रत्ने फरमातु छेलागी आश भक्तों ने के बख्शे नूरे मातु। अवतार मेहर बाबा की जय। O glorious, eternal, ancient one, your face is a bright transcendental sun. Lighten this dark world and the tears I weep. My heart may here I give to you to keep. Creator yet creationless you are. Truth and truth's body, divine avatar, who through compassion the three world maintains, destroyed his ignorance that life sustains. These five lights are the whirling spokes of breath of the world will that bears me on to death.
unless you who are infinitely kind break the wheels of which is conditioned mind. This incense is my love, this fruits my art. Wish to please you, I have shaped from my heart. Accept him as you would a simple flower that has no use beyond its shining hour. You are myself, I sing to you in praise and beg your love to bear me through the days. Till you, the ever-living perfect one, illume my darkness with your shining sun. अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय. Beloved Avatar Meher Baba ki jai. Folks, we have a birthday boy amongst us, Mr. Bhikkhu Setna. So let us all sing a very happy birthday for Bhikkhu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Bhikkhu. Happy birthday to you. Avatar Meher Baba ki jai. The party is at Taj Mahal Hotel near Grand Road. Jai Baba. Folks, we've come to an end of this program. I'd like to thank the entire the entire Ahir family, and also Jimmy Khan for having organized this. Thank you, everybody. Jai Meher Baba. Jai Baba. Jai Baba. Asimo, our son was also born on 31st March. Jimmy uncle, I'll end the meeting. Yes, yes. Yes, of course. Jai Baba.